Students, Good morning, sir. today we will be start a special class for 8th class and 9th class. Main science classes. Lesson name is Conservation of Plants and Animals. I haven't taught you these lessons, but I need to say that 8th class all students will explain and teach these lessons very well. You can teach 8th class students. Can you just teach? Yes, sir. Okay. Then, first of all, Tannu and I will come on the podium and explain conservation of plants and animals. Only for one topics in these lessons. Topic's name is biodiversity. Species. Okay, thank you. Come. Species and its types. Good morning, everybody. Well, I'm Kanular. I study in class 8 in Solar Certificate. Today, I'm going to teach you for the one chapter, and there are many topics in this chapter. Chapter name is 9. Chapter name is chapter name conservation of plants and animals. There are many topics in this chapter. My topic is species and its types. So I will teach you my topic. Species and its types. First of all, everybody I think species. What is species? Species is group of organisms or populations. It is capable of interpreting and exchanging among themselves, like taxon limited to small geographic area. It is survive and it is इसका मतलब ये होता है कि जो स्पेसीज होता है ना, वो एक इसका हिंदी होता है प्रजातियां. इसको हम प्रजातियां बोलते हैं. और इसके इसका एक ग्रुप होता है पॉपुलेशन का, या फिर हम उसको ऑर्गेनिज्म का भी ग्रुप बोल सकते हैं, जो कि इंटरप्रेटिंग और उसके बीच में उनके बीच एक्सचेंजिंग उनके डिस्ट्रीब्यूशन को करने में वो अच्छा होता है. और फिर फर्स्ट उसका देयर आर 4 टाइप्स: एंडेमिक स्पीसीज, endangered species, threatened species, and extinct species. Firstly, this type is endemic species. Some species of plants and animals are found exclusively in particular geographic area. इसका मतलब ये हुआ कि जो एंडेमिक स्पीसीज होते हैं ना, जैसे कि कुछ स्पीसीज जो होते हैं वो छोटे से एरिया या फिर ऐसे स्मॉल जियोग्राफिक एरिया में वो खुद को सर्वाइव करा लेते हैं. और फिर जैसे कि व्हाट इज एंडेमिज्म? Endemism is a term used in biology to talk about the distribution of a taxon limited to small geographic area, and which can therefore be found naturally and in its place. In consequences, endemic species are those that live in limited area, such as mountain range, lake, islands, like its area. And the endemic species are important. Why it's important? Because they live in habitat loss that is restricted to a particular area due to a mini mode. So मतलब ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इनका जो हैबिटेट लॉस हो रहा है, ये इनके लिए बहुत डेंजर है. और जो हमारा सेकंड टाइप है एंडेंजर्ड स्पीसीज, इसके नाम में ही एंडेंजर, तो नॉर्मली इसका जो फेस होता है ना, उसके फेसिंग जो स्टाइल होता है बहुत डेंजर तरीका होता है. Once upon a time, animals like lions, elephants, wild buffalo, buffaloes, and Barashinga
were also found in Satpura National Park. Animals whose number are diminishing to a level that they might face extinction are known at endangered animals. एक बार पहले मतलब एक समय की बात है जब एनिमल्स जैसे कि लायन, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलोज, बारहसिंगा, ये सब हमारे सतपुरा जो कि हमारा नेशनल पार्क है वहाँ पे ये मतलब ज्यादातर मिलते थे। लेकिन अभी जो इनका जो उनके लेवल का जो मतलब लेवल के हिसाब से इनका जो नंबर है वो काफी कम होते जा रहा है, ये विलुप्त होते जा रहे हैं। तो हमें इनके बारे में भी एक प्रकार से बहुत थॉट इनको इनके लिए करना चाहिए कि इनके लिए हमें कुछ करना चाहिए, ये हम मतलब विलुप्त ना हो। और जैसे कि इंडियन डिनोसॉर्स, क्रोकोडाइल्स, ब्लू व्हेल, मस्क डियर, ये सब जो प्रजातियां हैं ये धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। तो अगर ये तो रहा हम लोग का एंडेंजर्ड फॉना, अब हम बात करेंगे एंडेंजर्ड फ्लोरा के बारे में, जैसे कि अश्वगंधा हो गया, शतगंधा हो गया, शीशम हो गया, लार्ज योमिया हो गया, ये सब जो फ्लोरा है ये भी मतलब इन लोगों की मतलब नंबर्स ऑफ मतलब लेवल के हिसाब से ये लोग भी बहुत कम होते जा रहे हैं। और उसका थर्ड मेरा जो इसका टाइप होता है वो एक्सटिंक्ट स्पीसीज, मतलब एक्सटिंक्ट स्पीसीज वो ऐसे स्पीसीज हैं जो मतलब हमारे अर्थ पे कहीं पे भी ना ज्यादा देर तक मतलब सर्वाइव नहीं कर पाए। जैसे कि डायनासोर्स हो गया, डायनासोर आर वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एक्सटिंक्ट एनिमल्स by 65 million years ago. Example of only our passenger pigeon, Tasmanian wolves, dodo. Dodo are actually it's totally extinct. Next type is the threatened species. These are species which are facing danger of extinction. It is similarly to endangered species because the facing style of the extinctions are the verge of extinction. Threatened species include endangered species. Vulnerable species. These are what is vulnerable species? These are species that contain sufficient number of individuals in its habitat, but near future they might become endangered and rare species. India contains 172 species of animals considered globally threatened, 2.9% of all total number of threatened species. इसका मतलब ये हुआ ना, जैसे कि हमारे इंडिया के पास 172 ऐसे स्पीसीज है जो मतलब विलुप्त होने के कगार पर है। ऐसे कहा जाए कि मतलब वो खतरे में है, जैसे जो कि पूरे वर्ल्ड का 2.9% स्पीसीज होते हैं। दिस इंक्लूड्स 53 स्पीसीज ऑफ मैमल्स, 69 of birds and 23 of reptiles and 3 species of amphibians। जो कि ये जो है ये मतलब अभी ये पूरी तरह से हमारे फ्यूचर में ये पूरी तरह से खत्म हो जाए, इसके लिए हमें कुछ करना होगा, इसके लिए हमें एक अलग तरीके से इसमें हमें कमिटी बिठानी होगी। एंड our country also contains globally important population of some of Asia's rarest animals such as Asiatic lion, Indian elephant, Asiatic wild ass, marble cat, etc. like Asiatic water buffalo. ये जो जैसे कि ये एनिमल्स है हमारी कंट्री में भी ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट एनिमल्स है, जैसे कि एशियाटिक लायन हो गया, इंडियन एलिफेंट्स हो गए, वाइल्ड एशियाटिक वाटर बफेलो हो गए। ये जो एनिमल्स है ये तो फौना हो गया। अब ये फ्लोरा, इसमें का फ्लोरा क्या होगा, जैसे कि प्लैनेटस, डिफिलेटस एंड एस्कार्पोसाइटस। ये फ्लोरा जो है जैसे कि ये फ्लोरा भी मतलब ये विलुप्त होने के कगार पर है। तो एवरीबॉडी कैन आस्क मी क्वेश्चन। Okay, that's all. Okay, anybody have any types of questions for asking to your friends? No? Okay, thank you. Thank you for Tanu Rai. I am very impressed with your teaching styles. May you success in your life. Thank you. Next, Krishna Rai.
on the podium and also you teach your friends. Teach to your friends. Okay. Any topic you can choose in your book. I am teaching your friends in chapter 9. My chapter name is Conservation of Plant and Animals. In many times we talk about this chapter, but my topic is conservation of biodiversity. Biodiversity. Today, the continuous decline in biodiversity has led the situation alarming. आज के समय में जो बायोडाइवर्सिटी को हमको वाइल्ड लाइफ भी कहते हैं, वाइल्ड लाइफ जो है वो हमारे मतलब आज के समय में बहुत ही खतरे में है। हमें बचाने के लिए कुछ रूल्स बनाने होंगे. This should not deprive the future generation of the benefits that they can derive the diversity. इससे हमें मतलब हमको इनका शोषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें बहुत ही बेनिफिट्स और प्रॉफिट भी है जो हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी काफ़ी लाभदायक है. हमें इसको बचाने के रखना चाहिए. Thus, there is an urgent need for management and conservation of plant and animals. हमें इसका मैनेजमेंट और कंजर्व करके रखना चाहिए. मैनेजमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. प्लांट को काटना नहीं चाहिए और एनिमल्स को मारना नहीं चाहिए, उन्हें बचा करके रखना चाहिए. कंजर्वेशन इज नॉट ओनली प्रोटेक्शन बट आल्सो मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. सिर्फ कंजर्वेशन से ही इसका प्रोटेक्शन नहीं, हमें मेंटेनेंस ग्रेड एंड क्वालिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. Some rules of the conservation of wildlife. First rule that to prevent hunting, killing and capturing of any animals, some laws should be made and strictly followed by the people. जो उसको जानवरों को मारना, किल करना और उसको पकड़ करके कहीं कैप्चर करना, उसको हमें बंद करना होगा और कई ऐसे रूल बनाने होंगे जिसको फॉलो करने के लिए स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा पीपल्स को. Deforestation should be stopped immediately. This is because depletion of forest destroy the nature, habitats of wild animals and birds. Deforestation, पेड़ को कटाव को रोकना होगा क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक है हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए. और इससे क्या होगा, डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और इससे जो नेचर पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा. इसलिए हमें वाइल्ड एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए और बर्ड्स को भी नहीं. To protect the wildlife and its manipulation, national park and sanctuaries should be set up. हमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे कई जगह पे ले जाके, जिसकी नेशनल पार्क है उसको वहाँ पे ले जाके वहाँ पे रखना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए और उसे हर तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए. People should be educated about need or modes of conservation of wildlife. The feeding, breeding, nursery and resting areas of the species should be safeguarded. और उनको खिलाना पिलाना और उनको उनकी प्रोटेक्ट करने की सारी जिम्मेदारी को हर तरफ से सेफ गार्ड रखना चाहिए. और दैट्स Thank you. Also, your teaching style is good. Next, Reggie Prajapati, come on the screen. And choose any topics to your science chapter 9, conservation of plants and animals, and these your friends. Good morning, my dear friends and my teachers. Well, I am Vidhi Prajapati from class 8. Now I will be teaching you chapter 9. This chapter name is conservation of plants and animals. In this chapter, my topic is biodiversity. Biodiversity is a Greek word that bio means life and Latin word is diverse, that means variety. In nature has varied form of creations like flora, fauna, and
microorganisms, birds. If all these survive, living would be smooth of all species on the earth. Biodiversity that would means that there is need for diverse biological varieties to coexist without threat of extinction. Maximum biodiversity occurs in nature, occurs in a forest, and the regions which are rich in biodiversity are called megadiversity. The flora and fauna of a place together from the biodiversity. इसका ये ग्रीक वर्ड है जिसमें बायो का मीन लाइफ है और डाइवर्स का मीन वैरायटी है। इसमें बहुत सारे क्रिएशंस है जैसे में फ्लोरा, फौना, बर्ड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें फ्लोरा में प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स और वेजिटेशंस हैं उससे फ्लोरा कहते हैं, और जितने भी एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उन्हें फौना कहते हैं। और जहाँ पे सबसे मैक्सिमम जहाँ पे पाया जाता है फॉरेस्ट में पाया जाता है, और उसे ही मेगाडाइवर्सिटी सेंटर कहते हैं। The biosphere is the part of the earth where living organisms exist. It can also be called the zone of the life on the earth and is a self-regulating system. बायोस्फीयर जिसमें हम लोग रहते हैं उसी बायोस्फीयर कहते हैं, और इसे जोन ऑफ द लाइफ भी कहते हैं, और ये सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम होता है। Thank you. Vivek Prajapati. Next, I want to call these some of the podium and see please to your friends any topics in this lesson. Okay. Good morning to all students here. Here I am Dinesh, a student of Standard 8 by Scholars here. I am here to teach you all my topic. So my topic is national parks. National park is area decided to conserve the environment, natural resource and the wildlife there. The national park as it is the approval of legislator. यह नेशनल पार्क है, ये डिसाइड किया जाता है इतनी दूरी में रहेगा और ये इन्वायरमेंट को अच्छा से रखता है। नेचुरल रिसोर्स इन देयर नेशनल पार्क। यह नेशनल पार्क ये अपने एरिया को डिसाइड करता है और अपने एरिया को बचाव करता है। इसमें बहुत सारे जानवर होते हैं, जैसे एनिमल में टाइगर, देयर आर मेनी एनिमल। और अपने देश में 66 नेशनल पार्क हैं। अपने देश में 66 नेशनल पार्क हैं। And the national park have some features. I am going to tell some features of national park. Just such as private rights are not extended. Forestry operation, grazing and hunting and animal are provided. आप लोगों को पता होगा कि इसमें जानवरों को मारना नहीं चाहिए, इससे सरकार आपके केस कर सकती है। जैसे आप लोगों को एक बार पता होगा सलमान खान ने एक जानवर को मारा, वो ब्रीड हिरन थी, जिसके कारण उनको 20 साल की जेल हुई थी। वो एक बार जेल में भी गए थे। अलाउड ओनली स्टडी कल्चर एंड रिलेटेड पर्पस। हमारे देश में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे जिम कोवेट नेशनल सिचुएटेड है, ये सिटी नैनीताल और इसका स्टेट है उत्तराखंड। इसमें कौन से जानवर हैं, जैसे टाइगर है, पैंथर है, एलिफेंट है, डियर है, पाइथन है, ये है गिर
ये सिचुएटेड है, ये गुजरात इसका स्टेट है। इसमें एनिमल है लायन, पैंथर, झीना, क्रोकोडाइल और चिंकारा और है बहुत सारे हैं। यह बहुत छोटा टॉपिक है बट इसमें बहुत सारे जानवरों को बताया गया है। इससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा अगर आप जाने कि कौन सारे जानवर कहाँ रहते हैं। ओके, थैंक यू। Thank you. Next, Sophia. Yes, we do the Korean. And also you choose a topic in your lessons and teach to your friends. Thank you for giving me a chance to teach my class 11 and good morning to all of you. I am Sophia, a student of class 8 based for Sophia. Today I want to teach you. There are many topics in this lesson, but I want to teach you biodiversity in Hindi. So it means एक particular रीजन में अलग अलग टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उन्हें बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और बायोडाइवर्सिटी दो लैंग्वेज से लेकर बना है, ग्रीक और लैटिन। ग्रीक में बायो मीन्स होता है लाइफ और लैटिन में डाइवर्सिटी मीन्स होता है वैरायटी। और हमारे अर्थ पे 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पर हमने पूरे को नहीं देखा। उसकी मेनली दो रीज़न है। फर्स्ट कि वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं जिसे हम अपने विदाउट माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं। और सेकेंड कि वो ऐसे प्लेस पे रहते हैं जहाँ पे ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकते, या वहाँ पे डिग्री बहुत हाई, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो होता है, -50 तक वहाँ पर रहता है टेम्परेचर। और वैसे भी सीजन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सक्सेसफुली सर्वाइव कर सकते हैं। और जैसे कि लायन और टाइगर एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, विलुप्त होने वाले हैं, तो हम उनको क्यों उनको प्रोटेक्ट करें। डायनासोर भी हुए थे, तो हमने डायनासोर को कभी नहीं देखा। उनके पिक्चर्स हैं जिसको हमने देखा है, उनके मूवीज़ है, तो हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी तो हम लायन टाइगर की पिक्चर दिखा सकते हैं, उनकी मूवीज़ बना सकते हैं। तो हम उनको क्यों प्रोटेक्ट करें, क्योंकि उन्हें प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी एनिमल्स हैं एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे, वो सबको ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है। सपोज लाइक ग्रास को माउस खा लेगा और माउस को कैट, फिर कैट को डॉग, और फिर डॉग को उल्फ और उल्फ को लायन। अगर लायन नहीं हो तो उल्फ को कोई नहीं खाएगा, और ऐसे उल्फ की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। और उल्फ नहीं हो तो डॉग को कौन खाएगा, डॉग को कोई नहीं खाएगा तो फिर उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी और कंट्रोल हो जाएगी। और उल्फ को कोई नहीं उल्फ ना हो डॉग को कोई नहीं खाएगा, फिर डॉग की पॉपुलेशन बढ़ेगी। फिर अगर डॉग ना हो तो कैट को कोई नहीं खाएगा, फिर कैट की पॉपुलेशन बढ़ेगी। और फिर कैट नहीं हो तो माउस को कोई नहीं खाएगा, उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। माउस ग्रास को नहीं खाएगा। अगर ग्रास ही ना हो तो रेड कैट, और रेड ही ना हो तो कैट को कौन खाएगा, कैट कैट। ऐसे करके जितने भी थिंग्स हैं अर्थ पे वो सब इनडायरेक्टली एक दूसरे से। Thank you, Sophia Asni. Next, Priyanshu Rai, Comedy Korean. Study topics and teach to your friends. Good morning to all of you. I am Priyanshu Rai from class 10 scholarship India. Today my topic is wildlife sanctuary. First I tell about what is wildlife. Animals where are safe or protected for wildlife and hunting prohibited areas set up by any government. Only wild animals are protected there. केवल sanctuary में केवल wild animals is protected रहते हैं. It aims only at conservation of the species. इसका एम ये है कि इतनी जातियों को संरक्षण करते जो विलुप्त होने के कगार पर हैं. The wildlife sanctuary has the following features.
Wildlife sanctuary also provides a suitable condition to wild animals. The boundary of a sanctuary is not limited by state legislation. Some important sanctuary has given. First sanctuary is Manas. It conserves the elephant, tiger, etc. Second is Periyar. It conserves elephant, tiger, panther, and Sambal. Third is Sariska. It's conserved tiger, panther, hyena, etc. Fourth is Chilka. It conserved an ossia of birds like waterfalls and ducks. Thank you. Thank you. Last, I want to call Harshit Tiwari on the podium and also choose a topic in this lesson and explain. Good morning, everybody. Well, my name is Harshit Tiwari, and today I am going to teach you about types of species that are found in the world. So today we are going to discuss about some types of species. So there are many types of species. First type of species is the endemic species. First you have to clear the term what is a species to understand this term. आपको सबसे पहले स्पीशीज का मतलब समझना पड़ेगा. स्पीशीज मतलब होती है प्रजातियां. प्रजातियां वो प्रजातियां जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सके, आपस में वो रिप्रोडक्शन कर सके और अपनी पीढ़ी को बढ़ा सके. वो स्पीशीज, एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज से इंटरब्रीड नहीं कर सकती क्योंकि एक स्पीशीज का फंक्शन अलग है, दूसरे स्पीशीज का फंक्शन अलग है. इसलिए वो अगर सेम हो, अगर मान लीजिए एक गाय है और दूसरे गाय से इंटरब्रीड कर रही है तो वो इंटरब्रीड कर सकती है, लेकिन एक गाय एक कुत्ते या फिर एक लायन से इंटरब्रीड नहीं कर सकती क्योंकि ये उनका फंक्शन दूसरा है, इसका फंक्शन दूसरा है. इसीलिए स्पीशीज कांट इंटरब्रीड टू ईच अदर. सो द फर्स्ट टॉपिक इज एंडेमिक स्पीशीज. फर्स्ट आपको थोड़ा सा इसका बेस क्लियर करना पड़ेगा जो कि इसका पहले आपको डिफिनीशन जाना पड़ेगा. डिफिनीशन इसका क्या है? So species of plants and animals are found exclusively in a particular geographical area. Such species are called endemic species. इसका कुछ एग्जाम्पल हो जाएगा आपका जायंट पांडा जो कि नॉर्मली आपका चाइना में फाउंड होता है और आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा. और एशियाटिक लायन जो कि आपको गिर फॉरेस्ट कहाँ है? गुजरात में है. गुजरात इंडिया में है तो आपको बस इंडिया के गुजरात में ही जो कि गिर फॉरेस्ट है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा. साल एंड वाइल्ड मैंगो आर एग्जांपल्स ऑफ एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. साल और वाइल्ड मैंगो कुछ फ्लोरा के एंडेमिक स्पीशीज है. एंडेमिक स्पीशीज मतलब वो स्पीशीज होते हैं जो स्पीशीज बस एक ही रीजन पे फाउंड होते हो या फिर एक ही जगह पे वो पाए जाते हैं, उन्हें हम एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं. फ्लोरा में इसका एग्जांपल हो जाएगा साल एंड वाइल्ड मैंगो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है. पंचमढ़ी बायो रिजर्व में इसे पाया जाता है. उसके बाद से हो जाएगा एंडेंजर्ड स्पीशीज. एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होते हैं? वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, एनिमल्स लाइक लायंस, elephants, wild buffaloes and barasingha were also found in the Satpura National Park. मतलब सतपुरा नेशनल पार्क एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है जो कि इंडिया का है. वहाँ पे लायंस, एलिफेंट्स और बफेलो और बारहसिंगा पाए जाते थे, लेकिन अब वहाँ पे बहुत कम लेवल में पाए जाते हैं. यानी कि उनका जो लेवल है, उनका जो पॉपुलेशन का लेवल है लगातार डिक्रीज होते जा रहा है, लगातार डिमिनिश होते जा रहा है और दे आर फेसिंग द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. तो those animals whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction are known as endangered species. तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इंडियन राइनोसॉर्स और क्रोकोडाइल्स, ब्लू व्हेल और मस्क डियर, इंडियन बाइसन. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके है. तो सभी मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ. मैं आपको कुछ का नाम बता दे रहा हूँ कि आपको कुछ एक प्रकार से आपका बेस क्रिएट हो जाए इसके प्रति. तो उसके बाद से तीसरा हमारा जो स्पीशीज का टाइप है वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज है. देखिए
अभी तक तो हमने 2 स्पीशीज के बारे में पढ़ लिया है, एक था इंडेंजर्ड स्पीशीज और एक था एंडेमिक स्पीशीज। दोनों के बारे में मैंने आपको अपने ग्रेड रिपोर्ट देकर बताए हैं, लेकिन आपको अब एक्सटिंक्ट स्पीशीज मतलब जानना होगा। एक्सटिंक्ट स्पीशीज मतलब वो स्पीशीज होते हैं जो कि अब अर्थ पे कहीं नहीं पाए जाते हैं। दे आर नो मोर ऑन द अर्थ एंड कैन नॉट बी फाउंड, दे आर नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, सो दे आर टोटली एक्सटिंक्ट, दे आर टोटली वैनिश्ड फ्रॉम अर्थ, वी कैन नॉट सी देम एनीवेयर ऑन द अर्थ। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको कुछ जैसे कि आप जानते हैं कि कई मिलियन ईयर्स अगो अर्थ पे पहले डायनासोर्स का डोमिनेंस हुआ करता था, डायनासोर्स का राज हुआ करता था। तब एक एस्ट्रॉयड गिरा और उसके वेव से जो पूरा रोस्ट हुआ, उससे जो डायनासोर्स है उसके स्पीशीज लुप्त हो गए और वो हमें कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा पैसेंजर पिजन, तस्मेनियन वुल्फ और डोडो। डोडो एक चिड़िया प्रजाति है और पैसेंजर पिजन भी एक चिड़िया प्रजाति है। और उसके बाद से तस्मेनियन वुल्फ जो है वो एक ऐसा वुल्फ है जिसके ऊपर जो डिजाइन था वो ब्लैक स्ट्राइप्स कलर का डिजाइन था और ये अब नहीं पाया जाता है। हालांकि इसे आप बहुत 19वीं सदी में आप इसे देख सकते थे, लेकिन अब 20वीं सदी में आपको ये नहीं दिखाई देगा, 21वीं सदी में नहीं पाया जाता है। थ्रेटनेड स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं, देखिए थ्रेटनेड स्पीशीज और इंडेंजर्ड स्पीशीज दोनों लगभग सिमिलर है, सेम है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है अपने अंदर। इसका ये थ्रेटनेड स्पीशीज में डिफरेंस ये होता है कि इसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज भी आ जाते हैं, वल्नरेबल स्पीशीज भी आ जाते हैं। मतलब वल्नरेबल स्पीशीज वो स्पीशीज है जिनका जो पॉपुलेशन है, जो उनकी संख्या है, जो उनकी जनसंख्या है वो अभी तो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन वो बहुत तेज से डिमिनिशिंग होते जा रही है, बहुत तेज से डिक्रीज होते जा रही है। और ऐसा माना जाता है कि आने वाले फ्यू डिकेड्स में, आने वाले फ्यू सालों में वो जल्दी खत्म हो जाएंगे और उनकी जो विएबल पॉपुलेशन है वो नहीं रह पाएगी और वो रिप्रोडक्शन करने के एबल नहीं रह पाएंगे, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए 2 इंडिविजुअल्स की जरूरत होती है, 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है। 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है, तो उसके लिए 2 इंडिविजुअल्स की जरूरत होती है, जो अगर ये इनमें नहीं पाया गया तो ये आगे फर्दर अपने पीढ़ी को, अपने जनरेशन को इंक्रीज नहीं कर सकते, उसे बढ़ा नहीं सकते। दीज आर स्पीशीज विच आर फेसिंग ए डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन और आर एट वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। जैसा कि मैंने आपको कहा, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन मतलब एज ऑफ एक्सटिंक्शन में है, मतलब वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, आने वाले कुछ साल में विलुप्त हो जाएंगे। थ्रेटनेड स्पीशीज इंक्लूड इंडेंजर्ड स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज। वल्नरेबल स्पीशीज का मैंने आपको डिफिनेशन भी दे दिया है। इंडिया कंटेंट्स, देखिए कुछ फैक्चुअल बातें भी आपको याद करनी पड़ेगी। अगर आप अपने को ओवर टैलेंटेड शो करना चाहते हो तो आपको कुछ फैक्ट्स भी याद करने पड़ेंगे, जिससे आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो अपने ज्ञान से। तो उसके लिए आपको कुछ फैक्ट याद करना पड़ेंगे। इंडिया में 172 स्पीशीज जो ग्लोबली थ्रेटनेड है, 72 स्पीशीज है जो ग्लोबली थ्रेटनेड है और 2.9% स्पीशीज है इंडिया के जो पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली थ्रेटनेड है। These स्पीशीज 53 स्पीशीज उसमें से मैमल्स है और 69 स्पीशीज उसमें से बर्ड है, 23 स्पीशीज रेप्टाइल्स है, 3 स्पीशीज ऑफ एम्फीबियस। एम्फीबियस मतलब वो होता है जो जमीन पे भी रह जाए और पानी में भी एट द सेम टाइम वो रह सके। Our country also contains globally important population of some of Asia's rarest animals such as एशियाटिक लायन हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपको इंडिया का मैं आपको थोड़ा सा इंडेंजर्ड स्पीशीज मतलब थ्रेटनेड स्पीशीज का जानकारी दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको एशियाटिक लायन आपको बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलेगा। इंडियन एलिफेंट आपको बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलेगा। जो जायंट इंडियन स्क्वायरल है वो भी आपको बहुत कम मात्रा में देखने को मिलेगा। एशियाटिक लायन भी है, ब्योर भी है, बारबेल्ड कैट भी है, बंगाल फॉक्स है, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो है, इंडियन राइनोसॉर्स है, ईटीसी एक्सेट्रा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि हमारे इंडिया में अब लगभग लुप्त होने वाला है और इन्हें बहुत ही ट्रीट दिया जाता है। थ्रेटेड स्पीशीज मतलब वो स्पीशीज है जिनको हम लोग हानि करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उन्हें बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, इनके हैबिटेट्स हम डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसके वजह से वो अब एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं।
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें का सभी कॉन्सेप्ट, ये जो टॉपिक था स्पीशीज एंड स्टाइल, तो इसमें का सभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करा दिए होंगे। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे आस्क कर सकते हैं। तो अगर किसी के पास क्वेश्चन है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि राइज योर हैंड्स एंड आस्क योर क्वेश्चन। Do everybody have question? Nobody has? Okay, thank you. Okay, thank you. Harshad Tiwari. Also, I am very impressive to your teaching styles. Lots of thanks. चार दिन बच्चे जो हमला कर रहे हैं, सुनिए। Thereafter, देखिए is your teaching only for 8th class students. संसार बाबूदीन का होता है Has taught. क्लास 3 में ही जिसमें आप हैं। So, I want to call you class teachers, and I request to him that explain to your child science teacher who has taught you science. And Sanjeev sir. Yes. Okay. Sanjeev sir will come on the podium and tell about this lesson means conservation of plants and animals. What they have taught you, and you have also taught him. Okay, thank you. So, please Sanjeev sir come on the podium and tell something, because also thereafter only 9th class students will take a class, means this lesson will be teached. Thank you. Good morning all of you. Especially not the students, but now you all have become a teacher, a good teacher, undoubtedly. Your teaching styles reminding me that soon my seat will be vacant from this school, because you all have become a very good teacher. There is no any doubt that you all have a knowledge about this chapter, and your teaching style, your explanation, your words that you all mentioned in this chapter, that was a fabulous, means uncomparison. हम ये सोच रहे हैं कि इतना बेटर तो हम भी पढ़ाएंगे जितना बेटर आप लोग पढ़ा रहे हैं इसको। वो एंडेंजर्ड स्पेसीज, वल्नरेबल स्पेसीज, वो भी परफेक्ट मैनर में, सीक्वेंस में, बेस्ट परफॉर्मेंस। एंड स्पेशल थैंक्स टू हर्षित एंड तन्नू, Riddhi, Sophia, and all. Not only this only, these are the remarkable students, but all are like a stars. These are like a moon and sun, but all are like a stars. They have to come closer to shine. Stars के पास सन के जितना ही सनलाइट होता है उतना ही लाइट होता है, लेकिन वो दूर होने के कारण उतना हमें चमकीला नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो ये स्टूडेंट्स भी यदि थोड़े करीब आ जाते हैं तो ये भी शाइन करने लगेंगे लाइक अ सन। सो देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन सन एंड स्टार। सो आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि कोई सन है कोई स्टार है। ओके, एवरीवन इज परफेक्ट एंड योर टीचिंग स्टाइल वाज आल्सो परफेक्ट। There was nothing in the lesson. You all have written also and taught also very good with the example also. So it's all good. Thanks. It's my heartiest congratulations to all of you that soon my seat is going to be vacant because you have become very good teacher. Thank you.
thank you for your class teachers. And I mean, for laughing, who has taken the seat of your class teacher, some teachers? Who asked to take a seat? Nobody. Okay, thank you.